हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 18। चैप्टर 18 जो है जिसमें आज हम करेंगे लोकल गवर्नमेंट्स एंड फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थात इसका मतलब यही हुआ कि स्थानीय शासन तथा क्षेत्रीय प्रशासन काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों। सभी बच्चों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें जो है हम 74 और 73 जो है पंचायती राज के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर विस्तार पूर्वक जो है प्रकाश डालेंगे। लेकिन दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next year, district administration. There is an important point arrive here. Since the Vijay was a student of class 9th in a school in the city, the teacher tried to explain him their role of district administrations. He did so because it was important to know that apart from the above started rural and urban local self-governments, there is administrative machineries of every district, and this not only contributed to there is a functionings of the local bodies directly and indirectly, but also perform administrative and development function. In every district, there are a subdivision and block are talukas, and their official opposite there is assistant district administrations. He asked the Vijay if he was aware of key officials of district, and finding him the flamblings, their teacher explained various aspects of the district administration here. The key officials at their districts level are district magistrate, superintendent of police, district education officer, and district agriculture officer, and district forest officer, etc. There is a most important district level here. All these officers are the head of their department in the district. That's the most important. Ask the teacher here. The district is a magistrate, superintendent of police, district education officer, district agriculture officer, and district forest officer, etc. All these officers are the head of the department in the district level here. That's important. The first year district magistrate. However, it is a district magistrate and who is in charge of the whole district administrations here. And this post is also named a deputy commissioner. There is also his post name is a deputy commissioner, district collectors, and Upyokta. That's a more important name here. And she is belong to be Indian Administrative Service, means IAS. IAS is the district magistrate here. And district administration is responsible to be implement the policy and program of the state and central governments. Especially after independence, the district administration is responsible not only for a collection of revenue or taxes and maintenance of law and order, but it is also for various activities related to welfare and social economics department of the district. District has been an important unit of administration since long.
During the British colonial period, it was mainly responsible for maintaining the law and order and collection of revenue. But at present, state administration has been are decentralized and their district administrations is playing multifaceted role. The district magistrate therefore has been to the sign of various important powers and functions to perform on the behalf of the state government. The main function of district magistrate are following here. That's important. There is a function of district magistrate here. The maintain law and order and ensure the peace is a district. And secondly here, implementing various policy and programs of the state government and the central government. And the next year, acting as the main links between the state government and district level institution and office. This is important here. And the next year, coordinating their activities of different departments such as education, health, welfare, land management, police, jail, and culture, and taking the adequate and appreciate measurings during to the emergence and disaster as a conducting relief work, ensuring the conduct of free and fair election for a various representative bodies such as a Lok Sabha, Vidhan Sabha, Block Samitis, Jila Parishad, and municipalities, etc. That's important. And managing there is a collection of the revenue and other taxes, performing the judiciary functions and deciding the various debt and even imposing their penalties and fines. That's important. The next year, sub-divisional officer. Sub-divisional officer is important. For a better administration, each district is divided into smaller units called subdivisions. So there is a subdivision of the district are under the district magistrate, and officer is called to subdivision officer, means SDO. SDO is the most important post here, is made in charge of this unit, and the SDO is there is the assistant, and district magistrate is the field of the administration and also works as his her representative. The SDO is belong to the Indian Administrative Service, means IAS, are to be a cadre of the state civil service. He sees keep their land record and collected land revenue. She has a power to issue a license for armed and weapons and like guns and pistols. And it also is authorized for their insurance of driving license and certificate regarding their domiciles and scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. There's an important work here. The next year, the block development officer. The block development officer means BDO. There is an important post here. The blocks is a unit of administration at the lowest level. The officer in charge of the block is called block development officer, means BDO. He and she belong to state civil service, carried and look after various activity of the block. The BDO is linked with there is a middle tier of Panchayati Raj as he is the extra office and security of Panchayat Samiti and keep the record for the meetings, prepare and budget and coordinate of various developmental activities. Here, this is important here, the block department officer here. आगे जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, जिला प्रशासन। जिला प्रशासन कई मायने में कई बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शहरी क्षेत्र के लिए और ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रखता है। यहाँ पर देखा जाए तो विजय शहर के एक स्कूल में 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था और अध्यापक ने उसे जिला प्रशासन की भूमिका के विषय में बताने की कोशिश की। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय के अलावा प्रत्येक जिला में एक प्रशासनिक व्यवस्था भी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ के बारे में हमें पुण्य जो है जागरूकता रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी जो है हम अपने कामों को जो है सुचारू रूप से सरल रूप से कर सकते हैं। तो यहाँ पर टीचर ने भी बहुत काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया कि जिला प्रशासन का क्या कार्य है और इसका क्या भूमिका होती है, और इसके बारे में ये भी बताया गया कि कौन जो है जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है।
और यह प्रत्यक्ष तथा प्रक्षेप रूप से स्थानीय निकाय के कार्य में योगदान ही नहीं करता है, बल्कि यह प्रशासन तथा विकासात्मक कार्य भी करने के लिए सदैव अग्रसर होता है। प्रत्येक जिले में अनुमंडल तथा ब्लॉक अथवा तालुका होते हैं और जिला प्रशासन की सहायता के लिए वहाँ पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। उन्होंने विजय से पूछा कि क्या वह अपने जिले में नियुक्त प्रमुख पदाधिकारी को जानता है, तो उसे उलझन में देखा। अध्यापक ने जिला प्रशासन के विभिन्न पक्षों के विस्तार से समझाने की कोशिश किया और बताया कि जिला स्तर पर निम्न प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। सबसे पहले तो आते हैं जिला अधीक्षक, उसके बाद है पुलिस अधीक्षक तथा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला वन अधिकारी आदि। ये सभी अधिकारी जिले में अपने विभागों के प्रमुख होते हैं और इनका कार्य बहुत ही सुचारू रूप से करना होता है। सबसे पहले अगर हम बात यहाँ पर करें तो जिला अधीश काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पद होता है। कहते हैं जिला प्रशासन का प्रभार जिला अधीश के हाथों में ही होता है और यह पद जो है देखा जाए समाहर्त जो है डिप्टी कमिश्नर या उपयुक्त के नाम से भी जाना जाता है। आप कभी कभी देखते होंगे डिप्टी कमिश्नर, तो इसका मतलब वो हम जो बात कर रहे हैं जिला अधीश की ही बात कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर के नाम से भी कई क्षेत्रों में जाना जाता है और यह भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के अंतर्गत आता है। यानी जो यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं उसमें से आईएएस जो बनते हैं वही जिलाधीश होते हैं। देखिए यूपीएससी एग्ज़ाम में दो तरह के जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट होते हैं। एक आते हैं आईएएस और एक होता है आईपीएस। आईपीएस के रिगार्डिंग पुलिस सर्विस में होता है और आईएएस जो होते हैं वो जिला अधीश के अंतर्गत चुने जाते हैं, जो किसी भी क्षेत्र के मजिस्ट्रेट बनाए जा सकते हैं। तो यूपीएससी एग्ज़ाम भारत का महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है जो हर एक बच्चा देना चाहता है और ये ग्रेजुएशन के बाद ही आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो इसके लिए ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए पढ़ाई की वही ज़रूरत है जो आपको पता है, जो जनरली बच्चे पढ़ते हैं। करंटली अफेयर तो रहता ही रहता है, लेकिन जो आप 5वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ते हो उन्हीं क्वेश्चनों को उसमें पूछा जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तभी त्रिपाठी स्टडी हमेशा कहता है कि पढ़ाई करो तो उसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, इसमें एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, क्योंकि आगे बहुत से ऐसे कंपटीशन है जहां पर इन्हीं तरह के क्वेश्चनों जो है पूछे जाते हैं। अगर हम आगे बात करें, जिला प्रशासन राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिला प्रशासन राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रम को लागू अपने क्षेत्र में करते हैं। तो ये कार्य इनका ही होता है, जिलाधीश का ही कार्य होता है। केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने या प्रशासन ने जो भी रूल रेगुलेशन बनाया है उसको जो है बेखूबी लागू किया जाए। आज़ादी के बाद विशेष रूप से जिला प्रशासन न केवल राजस्व या करों का संग्रह और कानूनी व्यवस्था के रखरखाव के लिए, बल्कि जिला के कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए भी जिम्मेवार था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। जिला लंबे समय के प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई रही है और ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान यह मुख्य रूप से कानून व्यवस्था बनाए रखने और राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार भी था। लेकिन वर्तमान में राज्य प्रशासन की विकेंद्रीकृत कर दिया गया है और जिला प्रशासन बहुआयामी भूमिका निभा रहा है और इस प्रकार जिलाध्यक्ष की यह राज्य सरकार की ओर से बहुत सारी शक्तियां और कार्य सौंपे भी गए हैं। जिलाध्यक्ष का प्रमुख कार्य इस प्रकार से हम यहाँ वर्णित कर सकते हैं। सबसे पहला कार्य तो यही होता है कि जिले में कानूनी व्यवस्था तथा शांति बनाए रखना प्रमुख कार्य होता है जिलाध्यक्ष का। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रम को ये लागू करने का अधिकार जो है जिलाध्यक्ष का ही होता है और राज्य सरकार और जिला स्तरीय संस्थाएं और कार्यालयों के बीच मुख्य कड़ी की भूमिका भी जो है जिलाध्यक्ष ही निभाता है। उसके पश्चात है विभिन्न विभागों गतिविधियों का जो है समन्वय करना, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, भूमि व्यवस्था, पुलिस, जेल और संस्कृति, सभी का जो है जिलाध्यक्ष का ही कार्य होता है व्यवस्थित करने का। आपातकाल और आपदाओं के दौरान जो है पर्याप्त और उपयुक्त कदम उठाना तथा राहत कार्य करना जिला अध्यक्ष का प्रमुख कार्य बन जाता है। विभिन्न प्रतिनिधिक निकाय के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, जैसा कि लोकसभा, विधानसभा, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर निगम इत्यादि जो है जिला अध्यक्ष के अंतर्गत ही करवाए जाते हैं। भू राजस्व तथा अन्य करों के एकत्र करने की व्यवस्था करना भी जिला अध्यक्ष का मुख्य कार्य में से एक माना जा सकता है। न्यायिक कार्यों का जो है संपादन करना और विभिन्न प्रकार के विवादों का निपटारण करना तथा विभिन्न प्रकार के जुर्माना और दंड लगाना जो है इन्हीं का ही कार्य होता है।
शिकायतों का सुनना, यानी जन शिकायतों का सुनना, सुनवाई और उनका समाधान करना भी जिलाध्यक्ष का ही काम होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है बात। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष अनुमंडल अधिकारी। देखिए, अनुमंडल अधिकारी भी काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है और ये भी आईएएस ही बनते हैं। कहते हैं बेहतर प्रशासन के लिए प्रत्येक जिले की छोटी इकाई, जैसे अनुमंडल कहते हैं, में विभाजित किया गया है। हालांकि जिले के अनुमंडल जिला मजिस्ट्रेट के तहत है, परंतु एक अधिकारी जिसे अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीओ भी कहा जाता है, इस इकाई का प्रभारी होता है। अनुमंडल अधिकारी वह प्रशासन के क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए बनाया जाता है और उसकी जो है प्रतिनिधि के रूप में काम भी करता है। अनुमंडल अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के अंतर्गत आता है, यानी ये भी जो है आईएएस से ही सेलेक्ट किए जाते हैं, यानी यूपीएससी एग्जाम में जो बच्चे अच्छे अंक लेते हैं उनको भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत अनुमंडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। यह देखा जाए तो राज्य सिविल सेवा वर्ग के अंतर्गत आता है। वह भूमि रिकॉर्ड रखता है और भू राजस्व एकत्र करता है। वह बंदूक और पिस्तौल जैसे हथियारों के लिए लाइसेंस जारी करने की शक्ति भी रखता है और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए भी अधिकृत है। साथ ही वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र जारी करना इसी का ही काम होता है। आगे हमारे समक्ष है ब्लॉक, खंड और विकास अधिकारी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। देखा जाए तो ब्लॉक सबसे नीचे स्तर का प्रशासन की इकाई है और ब्लॉक का प्रभारी प्रखंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ कहा जाता है और वह राज्य सिविल सेवा संघ के अंतर्गत ही आता है, यानी वो भी जो है सिविल सेवाएं जो होती है एग्ज़ाम उसके अंतर्गत ही आता है और ब्लॉक की विभिन्न गतिविधियों का देखभाल करना इनका कार्य होता है। प्रखंड विकास अधिकारी पंचायती राज्य के मध्य टियर के साथ जुड़ा हुआ है और वह पंचायत समिति के प्रधान सचिव के रूप में बैठकों का रिकॉर्ड रखता है और बजट भी तैयार करता है और विभिन्न जो है विकासात्मक गतिविधियों का समन्वय करता है। तो भी कहते हैं खंड विकास अधिकारी का भी यहाँ पर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको हम बीडीओ के नाम से जानते हैं, यानी प्रखंड विकास अधिकारी। So our next topic is the most important here, opportunities and challenges. There's an important here, opportunity and challenges. In a view of the above, will you not agree that the rural and urban local bodies have opportunity for every citizen to be actively participate in the discussion making process, and these are the best institution to the impart political education to the citizens and enable them to acquire leadership qualities. When the citizens participate, they learn to be realize and pleaded to be issue and concern of the self as well as other. So, and these local government bodies are near to be them. The citizens can easily have access and seek a solution. And through the personal initiatives and interventions, and women is a particular have a greatest opportunities here, opening the reservation of seat for them, and greater number of women participate in the returning of this institution, and this has been one of the best way to the empower women and provides them opportunity to prove their capability. On the other hand, the local government bodies have put forth a number of challenges here. Begin a closer to be people, and this institution has arises the aspirations and expectations which they are not able to fulfill because of various constraints. The tasks of this institution are challenging, but the resources are limited, and this institution quite often lead to be faded and distractions. And promoting and ensuring the qualities of participations of citizens in the political process has been a constraining by factors like poverty, illiteracy, and social inequality, and the trend of the criminalization of politics. The element of casteism and colonialism also create problems, and the increasing trend of the corruptions and nepotism has been a great challenge to be affected the functioning of the local bodies here. This is important. यदि आगे हम बात करें यहाँ पर अवसर और चुनौतियाँ, देखिए कहते हैं अवसर बहुत होते हैं तो चुनौतियाँ भी उसी तरह जो है सर उठाए रखते हैं।
कहते हैं कोई भी कार्य इतनी सरलता से अगर हो जाता तो हर चीज़ बहुत आसान होता, लेकिन कहते हैं अगर कुछ अवसर हमें मिलती है तो कुछ चुनौतियां भी सामना करना पड़ता है। उपरोक्त विवेचन के आलोक में क्या आपको नहीं लगता है कि ग्राम और शहरी स्थानीय निकाय हर भारतीय नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप भाग लेने का अवसर प्रदान करता है, और ये नागरिकों के राजनीतिक और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी बेहतरीन संस्था के रूप में देखा जा सकता है तथा नेतृत्व के गुणों को प्राप्त करने का अवसर प्रदान भी हमें करता है। भागीदारी के द्वारा नागरिक विभिन्न मुद्दे एवं विषय का विश्लेषण करना भी सीख रहे हैं और स्वयं तथा अन्य व्यक्तियों के लिए हित की पैरवी करते हैं, क्योंकि ये स्थानीय सरकारी निकाय उनके करीब होते हैं। अंत वो नागरिक की पहुंच में है तथा नागरिक व्यक्तिगत पहल और हस्तक्षेप के माध्यम से समाधान ढूंढ सकते हैं। विशेष तौर पर महिलाओं के पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। देखिए, ये बात तो कहीं मानने में सही होता है कि सारे निकाय जो होते हैं हमारे करीब होते हैं, लेकिन कहते हैं करीब होने के पश्चात भी अगर कोई समस्या आती है तो जर्नल सी बात है, यहाँ तक पहुँचना संभव आम व्यक्तियों के लिए नहीं होता है, और ये लोग आम व्यक्तियों को नहीं सुनते हैं। वास्तविकता अगर मैं बताऊँ तो ये चुनौतियाँ सरकार की नहीं होती, चुनौतियाँ आम गरीब व्यक्तियों की होती है, क्योंकि ये आम व्यक्तियों की बातों को नहीं सुनते हैं। ये मैं जानता हूँ, ये आप भी जानते हो, क्योंकि इनसे अगर बात करना हो किसी विषय पे तो न जाने कितने चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इसलिए किया गया कि ये जनता के समक्ष रहे, जनता की प्रॉब्लमों को देखें, उनकी चुनौतियों को सामना करें और उनके ही विचारों से आगे प्रशासन का ढांचा चलाए। लेकिन आज के समय में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आज के समय में ये होता है कि सब अपनी मनमर्जी चला रहे होते हैं, और ये होते हैं बेचारे आम जनता पर आए दिन नए नए रूल रेगुलेशन थोपे जाते हैं। अगर आपको मैं बता दूं, अब बाहर जाके देख लो तो आपको कहीं भी कुछ ही क्षेत्र में कुछ अच्छा रूल रेगुलेशन देखने को मिलेगा, बाकी किसी क्षेत्र में नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं आज के समय में हर लोग अच्छे पोस्ट इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उनको आरामदायक जीवन चाहिए, एसी भरा जीवन चाहिए, उनको तकलीफ़ किसी को भी सहना नहीं होता है। अगर ये बात अगर आपको गलत लगता है तो आप देखिए, किसी भी क्षेत्र में ये प्रशासनिक लोग गुजरते हैं तो उनको रोडों का बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया जाता है, लेकिन वही रोड आम जनता के लिए टूटा होता है, फूटा होता है। लेकिन जब इनकी काफ़िला निकलता है तो इनके लिए रोडों को बिल्कुल चिकना दी जाती है, साफ़ सुथरा कर दी जाती है। इवन कि अगर गंदगी की बात देखोगे तो आम जनता के समक्ष बहुत से गंदगी पड़ी होती है। मैं जानता हूँ कि आम जनता ही ये करती है, लेकिन प्रशासन की ढिलाई के कारण अगर प्रशासन शक्ति अगर बढ़ती तो जनता का हिम्मत नहीं है कि कोई भी कूड़ा करकट यहाँ वहाँ फेंक दी, और जब काफ़िला गुजरती है तो सारे चीज़ों को साफ़ सुथरा कर दी जाती है। तो जर्नल से बात आप भी समझिए, सोचिए कि जब ये प्रशासनिक व्यक्ति अगर आम जनता के पहुँच तक होती तो वो तो सभी चीज़ों का भली भांति देखती है, जानती है, उनको भी पता है कि क्या समस्या आम जनता में है और क्या होना चाहिए, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अपने आराम की सुविधा ही देखती हैं। तो ये प्रश्न उठाना कहते हैं जायज़ ही रहता है, क्योंकि मैं तो एक आम जनता ही हूँ और जो मैं देखता हूँ वो बोलना मेरा स्वाभाविक बात है। क्योंकि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छाई बुराई का भी पता होना चाहिए। क्योंकि आप में से कोई बच्चा प्रशासनिक ढांचे में जाओगे तो आपको भी एहसास होगा कि जो हमें दिखाई जाती है वो कभी भी सही नहीं होती है, और इवन आपको भी पता होता है कि ऐसी समस्या नहीं होती है। तो ये बातें बहुत ध्यान देने वाला बात है कि कोई भी प्रशासनिक ढांचा, चाहे वो IPS के रिगार्डिंग आया हो, IAS के रिगार्डिंग आया हो, कहते हैं वो भी यही सब बात पढ़ के आगे आगे जाते हैं, वो भी ये सब बातें पढ़ते हैं। ये मैं नहीं कहता, उनको भी हर बात की नॉलेज होती है कि हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या मुसीबतें हैं, क्योंकि IAS वाले सारे यही सब बात पढ़ते हैं। इवन कि जब उनका सेकेंड मेन एग्ज़ाम होता है तो यही बात वो लिखते हैं, लेकिन जब वो लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बातें लिखते हैं, लेकिन जब वो पोस्ट पे आ जाते हैं तो सारे बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो यही तो हमारे देश का सबसे बड़ा विडंबना है कि हम जो चीज़ जानते हैं, जो चीज़ समझते हैं, बाद में उसी चीज़ को हम नकार देते हैं। चलिए, ये बात तो आम बात है और जिसको सब जानते हैं और समझते हैं फिर भी उसको
अमल में नहीं लेते हैं। ये तो जनरल टॉपिक थी जिसको मैंने बताना अपना कर्तव्य समझा। अब देखते हैं हमारा टॉपिक में आगे क्या है। कहते हैं इन निकायों महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण के परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं इन संस्थाओं के चलाने में हिस्सा लेती है। तो देखा जाए आज महिलाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इन क्षेत्रों में, क्योंकि आज बहुत सी महिलाएँ IAS IPS के जो एग्ज़ाम है क्रैक कर रही है, और ये महिलाओं को जो है सशक्तिकरण का बेहतरीन तरीका है। तो उन्हें अपनी क्षमता के साबित करने का सबसे अच्छा जो है अवसर प्रदान यहाँ पर होता है इसके अंतर्गत। उसके पश्चात है दूसरी तरफ स्थानीय जो है सरकारी निकाय के समक्ष कई चुनौतियाँ भी हैं। लोगों के करीब होने के कारण इन संस्थाओं ने लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को बढ़ाया है, जिन्हें पूरा करने में विभिन्न बाधाओं के कारण वे स्वयं सक्षम नहीं हैं। देखिए ये कहीं तक बात गलत है कि वो लोगों के साथ है तो वो सक्षम क्यों नहीं हो सकती। कारण ये होता है ना कि अगर कोई अच्छा आगे करना चाहता है तो उसके आगे जो है रुकावट डालने वाले बहुत से लोग खड़े हैं, क्योंकि कहते हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर कोई अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं तो आगे उनको करने नहीं दिया जाता। शायद इन्हीं कारणों से ये सब जानते हुए भी वो हर बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ हो जग कल्याण के लिए हो, अच्छी बातें हो, और इसमें जनता का भी पार्टिसिपेशन होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये चुनौतियां सदैव बने रहेगी, ये हमेशा यही रहा है। इन संस्थाओं का कार्य चुनौतीपूर्ण है, जबकि संसाधन सीमित हैं। कहते चुनौतियां बहुत है, संसाधन बहुत कम है, और इस परिस्थिति अक्सर विवाद और दोष के जन्म देती है। कई विवाद उठते हैं, कई विवादों पर जो है उंगली उठाई जाती है। अब देखिए प्रशासन ने कई क्षेत्र में जो है बच्चों के EWS के रिगार्डिंग जो है एडमिशन का जो प्रावधान पहले लॉटरी ड्रॉ थी, अब इन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया। तो ये बहुत बड़ा विवाद उठा, लेकिन सरकार ने इस बात पे कभी भी सुध नहीं ली। सिर्फ उन्होंने जो रूल बना दिया सो बना दिया। अब देखिए कहते हैं RTE के रिगार्डिंग जो है फ्री एजुकेशन देने की जो प्राइवेट स्कूल का प्रावधान था वो लॉटरी ड्रॉ के अंतर्गत था। अब लॉटरी ड्रॉ जब डाला जाता है तो भविष्य बच्चे का उसमें रहता है, कोई भी पर्ची कभी भी निकल सकती है, किसी भी क्षेत्र का निकल सकता है। लेकिन जब कंप्यूटर से यही कार्य किया जाएगा तो आपने देखा ही होगा, जो डाटा आप डालोगे वही कंप्यूटर दिखाएगा। आपने रोबोट फिल्म भी देखा होगा, ठीक है, 0.0 भी देखा होगा। सब में यही बात को दर्शाया गया कि कंप्यूटर को हम जो देंगे वही हमें करके दिखाएगा। रोबोट में भी आपने देखा होगा, वहाँ पर जो है अप्रूवल इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि हमने जो कमांड उसको दिया है वही कमांड वो सिर्फ मानेगा। तो इसमें भविष्य कहाँ से आ गया बच्चों का? वो तो सिलेक्शन हुआ ही नहीं। उन्होंने क्या किया, 1 किलोमीटर के दायरा उन्होंने कंप्यूटर में सेट कर दिया। अब सारे बच्चे जो 0.1 किलोमीटर के दायरे में थे उनका सिलेक्शन हो गया, और जो पहले बड़े दूर दूर से होते थे, आसपास गरीब झुग्गी झोपड़ियों से होते थे बच्चों का सिलेक्शन, वो नहीं हुआ। और हुआ कहाँ? जो स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में थे उन्हीं बच्चों का एडमिशन हुआ। अगर मान लीजिए किसी स्कूल में 1 किलोमीटर के दायरे में उन्होंने नहीं पर्ची डाली थी तो 0 पॉइंट से लेकर 3 पॉइंट के किलोमीटर में चला गया, क्योंकि वो कहते हैं ना जो बचा खुचा होता है वो गरीबों को मिलता है। सेम यही प्रावधान हुआ। तो ये बहुत बड़ा विवाद उठा था, लेकिन देखा जाए तो इस विवाद पे किसी ने भी सुध लेने की कोशिश नहीं की। कहते हैं जो रूल उन्होंने बना दिया, इन्होंने आंख बंद कर ली और हो गया। अब ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, क्योंकि कोई भविष्य का जो है फैसला कंप्यूटर नहीं कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में हम जो भी डाटा डालते हैं वही हमें शो करता है। और कंप्यूटर इंसानों ने नहीं कहते कंप्यूटर इंसानों ने बनाया है, ठीक है, कंप्यूटर कोई इंसान ने नहीं बना दिया। कंप्यूटर कभी इंसान को बना सकता है क्या? लेकिन यहाँ प्रावधान जो है बहुत ही गलत सिस्टम है, रूल रेगुलेशन गलत है, जो कि बहुत ही दुखदायक परिस्थिति का जो है सामना आने वाला समय में करना पड़ सकता है। चलिए, ये विवाद दोस्तों कहते हैं होता ही रहेगा और जन्म लेती भी रहेगी, लेकिन इसका प्रावधान बड़े बड़े लोगों के हाथों में ही रहेगा। आम गरीब बंदा तो सिर्फ कहते हैं उन रेगुलेशन मानते मानते अपना जीवन जो है नष्ट करेगा। चले, ये तो था। यहाँ पर आप कहते हैं राजनीतिक प्रक्रियाओं में नागरिकों की गुणवत्तापूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देने तथा सुनिश्चित करने में गरीब, अशिक्षित, सामाजिक असमानता तथा राजनीतिक के अपराधियों की प्रवृत्ति जैसे कारक बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, गरीबी, अशिक्षित, मैंने जो भी बात अभी बताई सभी उसी बातों की तरफ इशारा कर रहा है। गरीबी, गरीब को तो उन्होंने और गरीब ही बना दिया है। अशिक्षित जो है, अगर गरीबों में अशिक्षित की बात देखा जाए तो आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज सरकार ने बेशक स्कूल खोल दिया हो, बहुत कुछ कर दिया हो, लेकिन देखा जाए तो बच्चों में ज्ञान जो है आज एक चीज़ की तरह सॉफ्ट हो गई है, उनमें नॉलेज ही नहीं है।
आज देखिए सीबीएसई के किताबें कितनी पतली पतली हो गई है। क्या सरकार ने यही सोच के इनको पतली किया है कि हमारे देश का भविष्य जो आगे आने वाले हैं बिल्कुल ही वो खुला माइंड हो गए, उनका कुछ भी उनके माइंड में नहीं है। तभी तो देखिए सिलेबस कहाँ से कहाँ उन्होंने कर दिया सीबीएसई वालों ने। ये सोचने वाली बात है और सरकार को इसमें सुध लेने की ज़रूरत है, लेकिन मैं जानता हूँ सरकार कोई सुध नहीं लेगी। आए दिन इन्होंने सिलेबस घटा देना है, आए दिन उन्होंने बोर्ड को नष्ट कर देना है, तो बच्चे कहाँ से पढ़ने की कोशिश करेंगे जब उनमें कोई प्रेशर नहीं, टेंशन नहीं, तो कहाँ से कोई अच्छा आविष्कार कर सकेगा। ये सोचने वाली बात है। कहते हैं जब तक हमें कुछ चीज़ की टेंशन रहती है तो हम बहुत कुछ कर जाते हैं उसके लिए। अब जब टेंशन ही नहीं रहेगा, हमने पास तो हम हो ही जाएंगे, तो टेंशन का आएगा। तो लीजिए हो गया, कहाँ से भविष्य आगे बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इनमें सीबीएसई को भी बात सोचने की आवश्यकता है। सीबीएसई जैसे जो सिलेबस कम करती चली जा रही है, ये बहुत बड़ी आने वाला समय में मुसीबत का सबब बन सकता है बच्चों के भविष्य में। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो है गरीबी और अशिक्षा का जो है सबसे बड़ा कारण आने वाला फ्यूचर में बनेगा। राजनीतिक अपराधियों की प्रवृत्ति भी इसके कारण बनेगा और ये बनेगा। जाति और संप्रदायता के तत्व भी समस्या खड़ी करेगी, क्योंकि बच्चे समझदार नहीं रहेंगे, उनका नॉलेज ही छोटा रहेगा, तो कोई भी व्यक्ति उन पर राज कर जाएगा, ये आम बात रहेगी। तो सांप्रदायिकता तत्व समस्या खड़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति भी स्थानीय निकाय के प्रभावी कार्यशील की बड़ी चुनौती है। और जर्नल सी बात, ये भ्रष्टाचार तो आज हमारे समाज में घर ही कर चुका है, और इसमें जितना भी सरकार अपने आप को पीठ थपथपा ले कि हम भ्रष्टाचार पे कंट्रोल कर रहे हैं, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, और इक्का दुक्का बंदा को जो उठा कर रख देते हैं, लेकिन कहते हैं जो उनके अपने ही विभाग में बड़े बड़े भ्रष्टाचार लोग ही हैं, उन पर उनकी पहुँच कभी नहीं पहुँचेगी। ये मैं जानता हूँ और ये आप भी समझते हो। और भाई भतीजावाद की तो हम बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो आम है। कहते हैं बड़े बच्चे के ही बड़े बच्चे बनते हैं, आम गरीबों कहाँ से उठेंगे, ये तो आम बात ही है।